میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے ہر کام کو سیدھے طرز پکڑنے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں. اور اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے. خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ جموں کشمیر میں ہوا ہے اس میں کسی پاکستانی تنظیم کو کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر آپ نے عین اسی ٹائم پہ پکڑ تکڑ کیوں شروع کر دی؟ یہ آپ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں جو غلط ہے. میں اس بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اسے کسی پاکستانی تنظیم کا تعلق نہیں. دوسرا, جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے, وہ ہوم ورک ہوا ہی نہیں ہے, اور اس لیے یہ سوالات آئے ہیں شاہ صاحب جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. مگر عمران خان نے تو قوم کو ویسے ایک بتی کے پیچھے لگا دیا, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس میں کوئی ایک بڑے صبر اور تحمل سے ایک اسٹریٹجی بنا کر مسائل کو حل کرنے کا تو ان کے پاس کوئی خاکہ ہی نہیں ہے. خدا کرے, کیونکہ یہ بہت ایک کروشل ایشو ہے. جہاں میں طریقہ کار حکومت سے اتفاق نہیں کرتا وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شاید ہمیں سیاسی فائدہ وقتی طور پہ تو مل جائے مگر اس سے ملک کی جگ ہنسائی ہو. سو بلاول بھٹو زرداری کے یہ بیان مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ بار بار ذکر بڑے نیگیٹولی کرتے ہیں, منفی انداز سے کرتے ہیں, بلکہ 3 وزراء پہ بھی الزام لگاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ملک رہے گا تو انشاءاللہ یہ سیاست بھی رہے گی. اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے پاکستان کا کیس بین الاقوامی طور پر کمزور ہو. سر یہ بتائیں, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کو ہمیشہ کامیاب سیاسی مشورے دیے ہیں, ابھی کیونکہ ان کی رہائی ہوئی ہے اور اس رہائی کے بعد کیا آپ ان کو کیا مفید سیاسی مشورہ ایسا دیں گے اور کیا آپ ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں؟ ابھی رہائی تو نہیں ہوئی, جب رہائی ہوگی تو پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ 2018 کے انتخابات میں آپ نے 2 حلقے تو لوز کیے لیکن صوبائی اسمبلی کی کیا وجہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کی نشست کا حلف کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کس کو ایم پی بننا اچھا نہیں لگتا؟ 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے ایم این اے ایم پی اے میں. اگر میں اس کا حلف لے لوں, میں صوبائی اسمبلی 36,000 سے جیتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا میں اس پہ مور ضبط کر دوں کہ وہ صحیح ہوا ہے. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ مقامی بندہ میرے مخالف کرے, میں 36,000 سے جیت رہا ہوں, باہر سے ایک بندہ ہے اس حلقے کی بات کر رہا ہوں, وہ مجھ سے قومی اسمبلی صوبائی میں یونین کونسل میں 5,000 سے جیت رہا ہوں, قومی میں 2,000 سے ہار رہا ہوں. یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں صوبائی اسمبلی تو کبھی ووٹ ہی نہیں مانگتا. سو اس لیے لبے لباب یہ کہ صوبائی اسمبلی کا حلف لے لوں تو میں قومی اسمبلی پہ, اس کا مطلب ہے کہ میں نے قبول کر لیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی وزیر داخلہ میں ہیں, FATF میں گرے لسٹ سے پاکستان بلیک لسٹ کی طرف موو آن ہو رہا ہے, تو جو حکومت اس وقت اقدامات کر رہی ہے اس کو روکنے کی وجہ سے پروسکرائب جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, کیا یہ مناسب ہیں اور کیا یہی جو ہے کافی رہیں گی پاکستان جو ہے بلیک لسٹ میں جانے سے بچ سکے اور جو فائنینشیل بینز لگ جائیں گے پاکستان پہ اس سے بچ سکے؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے, کاش اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو. میں حقیقتاً FATF کو ایک سیاسی ادارہ سمجھتا ہوں. ان کو اوپر سے جو ڈائریکشن آئے گی, یہ پاکستان جو مرضی کر لے, چند بڑی طاقتیں اگر یہ کہیں گی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے خدا نخواستہ یا ریڈ لسٹ میں ڈالنا ہے, وہ کر دیں گے, آپ سونے کے بن کے آ جائیں. اور اگر انہوں نے آپ کو سپیس دینی ہے تو یہاں وہ آپ کو سپیس دیں گے, وہ راضی کسی اور بات پہ ہوں گے, یہاں آپ کو سپیس دیں گے. جتنا کچھ پاکستان نے کیا ہے اپنے آپ کو بالکل وائٹ کرنے میں, اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اس کے باوجود اس وقت جو انٹرنیشنل ایک صورتحال ہے پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے,
मकसद पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है, तो उस हवाले से ये सारा प्रेशर है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो इकदाम कर रहा है, इससे पहले भी किए हैं, ये नहीं कि पहले नहीं हुए, पहले भी हुए, अब भी जो कर रहा है, मौजूदा हुकूमत जो कर रही है वो जारी रहने चाहिए। मगर उसमें अपोजिशन को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और कोई ऐसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिसमें हुकूमती कार्रवाइयों पर मुल्क के अंदर से शक और शुबा का इजहार किया जाए। बहुत साहब एक आखिरी सवाल है, मुकामी सियासत के हवाले से। मुकामी सवाल है कि ये कैंट बोर्ड के इलेक्शन आ रहे हैं और इनमें क्या आप अपना कोई ग्रुप लेके आएंगे? देखिए इधर जरूर इंशाल्लाह हर सूरत में कैंडिडेट खड़े होंगे, आप देखेंगे। मगर ये बहुत कबल अज़ वक्त है। अभी तक मुझे मौजूदा हुकूमत ना कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस और ना लोकल बॉडीज इलेक्शन कराती नजर आती है। और कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में तो और बड़े मसाइल होते हैं। अभी मेरे ख्याल चंद महीने हैं, कुछ महीने हैं, मगर उसके बाद जब ये ऐलान हुआ तो फिर मेरा सही मौका वापस सामने आएगा। माजी में आपके साथ बहुत सारे टैक्स लगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे काम करने का भी तरीका होता है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत ने हर काम को सीधे तरफ पकड़ने के बजाय उल्टे हाथ से पकड़ते हैं। और इस बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, टाइमिंग के हवाले से खास तौर पे। जब आप कह रहे हैं कि ये जो वाकया जम्मू और कश्मीर में हुआ है इसमें किसी पाकिस्तानी तंजीम को कोई तल्लुक नहीं है, तो फिर आपने ऐन उसी टाइम पे पकड़ तकड़ क्यों शुरू कर दी? ये आप अपनी बात की नफी कर रहे हैं जो गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल 100% मुतफिक हूं कि जो ये वाकया हुआ है इसे किसी पाकिस्तानी तंजीम का ताल्लुक नहीं। दूसरा, जो काम आपने करना है उसके लिए एक तरीकाकार चाहिए, वो होमवर्क हुआ ही नहीं है। और इसलिए ये सवालात आए हैं शाह साहब जिसका इजहार आप कर रहे हैं। मगर इमरान खान ने तो कौम को वैसे एक बत्ती के पीछे लगा दिया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। उसमें कोई एक बड़े सब्र और तहम्मुल से एक स्ट्रेटेजी बनाकर मसाइल को हल करने का तो उनके पास कोई खाका ही नहीं है। खुदा करे, क्योंकि ये बहुत एक क्रूशल इशू है। जहां मैं तरीकाकार हुकूमत से इत्तफाक नहीं करता, वहां मैं समझता हूं कि अपोजिशन को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे शायद हमें सियासी फायदा वक्ती तौर पर तो मिल जाए, मगर उससे मुल्क की जगहंसाई हो। सो बिलावल भुट्टो जरदारी के ये बयान मुझे बहुत अजीब लगा कि वो बार बार जिक्र बड़े नेगेटिवली करते हैं, मनफी अंदाज से करते हैं, बल्कि 3 वज़रा पे भी इल्जाम लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि मुल्क रहेगा तो इंशाल्लाह ये सियासत भी रहेगी। अपोजिशन को भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान का केस बैनुल-अक़वामी तौर पर कमजोर हो। सर ये बताएं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आपने हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खास तौर पे मियां नवाज शरीफ को हमेशा कामयाब सियासी मशवरे दिए हैं, अभी क्योंकि उनकी राय हुई है और इस राय के बाद क्या आप उनको क्या मुफीद सियासी मशवरा ऐसा देंगे और क्या आप उनकी इयादत के लिए जा रहे हैं? अभी रिहाई तो नहीं हुई, जब रिहाई होगी तो फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। चौधरी साहब ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात में आपने 2 हल्के तो लूज किए, लेकिन सूबाई असम्बली की क्या वजह है कि आप सूबाई असम्बली की नशिस्त का हलफ क्यों नहीं उठा रहे? किसको एमपी बनना अच्छा नहीं लगता? 19-20 का ही फर्क होता है मैंने एमपीए में। अगर मैं उसका हल्फ ले लूं, मैं सूबाई असम्बली 36,000 से जीता हूं, तो इसका मतलब है कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ मैं उसे उस पर मोहर जब्त कर दूं कि वो सही हुआ है। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि मुकामी बंदा मेरे मुखालिफ करे, मैं 36,000 से जीत रहा हूं। बाहर से एक बंदा है, उस हल्की की बात कर रहा हूं, वो मुझसे कौमी असम्बली में, सूबाई में यूनियन काउंसिल में 5,000 से जीत रहा हूं, कौमी में 2,000 से हार रहा हूं। ये कभी सुना है आपने? मैं सूबाई असेंबली तो कभी वोट ही नहीं मांगता। सो इसलिए लुबे लुबाब ये कि सूबाई असेंबली का हल्फ ले लूं तो मैं कौमी असेंबली पे, इसका मतलब है कि मैंने कबूल कर लिया। साहब ये बताइएगा कि आप भी वज़ीर दाखिला नहीं हैं,
FATF में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट की तरफ मूव ऑन हो रहा है, तो जो हुकूमत इस वक्त इकदामात कर रही है इसको रोकने की वजह से प्रोस्क्राइब जो बैंड आउटफिट्स हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आपने पहले भी जिक्र किया, क्या ये मुनासिब है और क्या यही जो है काफ़ी रहेंगी पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट में जाने से बच सके और जो फाइनेंशियल बैन्स लग जाएंगे पाकिस्तान पर उससे बच सके? देखिए, बहुत अहम सवाल है, काश इस पे पार्लियामेंट में डिबेट हो। मैं हकीकतन FATF को एक सियासी इदारा समझता हूं। उनको ऊपर से जो डायरेक्शन आएगी, ये पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, चंद बड़ी ताकतें अगर ये कहेंगी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना है, खुदा न खास्ता, या रेड लिस्ट में डालना है, वो कर देंगे। आप सोने के बन के आ जाएं। और अगर उन्होंने आपको स्पेस देनी है तो यहां वो आपको स्पेस देंगे। वो राजी किसी और बात पे होंगे, यहां आपको स्पेस देंगे। जितना कुछ पाकिस्तान ने किया है अपने आप को बिल्कुल वाइट करने में, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इसके बावजूद इस वक्त जो इंटरनेशनल एक सूरत हाल है, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मकसद पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है, तो उस हवाले से ये सारा प्रेशर है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो इकदाम कर रहा है, इससे पहले भी किए हैं, ये नहीं कि पहले नहीं हुए, पहले भी हुए, अब भी जो कर रहा है, मौजूदा हुकूमत जो कर रही है, वो जारी रहने चाहिए। मगर उसमें अपोजिशन को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और कोई ऐसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिसमें हुकूमती कार्रवाइयों पर मुल्क के अंदर से शक और शुबा का इजहार किया जाए। बहुत साहब, एक आखिरी सवाल है। मुकामी सियासत के हवाले से सर, मुकामी सवाल है कि ये बोर्ड के इलेक्शन आ रहे हैं और इनमें क्या आप अपना कोई ग्रुप लेके आएंगे? देखिए, इधर जरूर इंशाल्लाह हर सूरत में कैंडिडेट खड़े होंगे, आप देखेंगे। मगर ये बहुत कबल अज़ वक्त है। अभी तक मुझे मौजूदा हुकूमत ना कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस और ना लोकल बॉडीज इलेक्शन कराती नजर आती है। और कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में तो और बड़े मसाइल होते हैं। अभी मेरे ख्याल चंद महीने हैं, कुछ महीने हैं, मगर उसके बाद जब ये ऐलान हुआ तो फिर मेरा सही मौका आपके सामने आएगा। माजी में आपके साथ बहुत सारे टैक्स